Hey guys, welcome back to my channel Glimmering Us. This video was totally unexpected. I didn't thought of making a video today, but since I didn't got any work to do, so I thought of चलो ठीक है बना ही लेते हैं video. So as you have already got the idea what we are gonna talk about today. How was my Indigo training experience? First of all, I would like to say मेरा जो thought process था regarding the training, regarding the cabin crew, it has totally been changed 360 degree when I joined in Indigo. In my mind, it was very clear that cabin crew is all about customer service. We have to serve customer, we have to be there for the customer at all point of time. But the thing is not like this. In the whole training process, customer service was just a part of it. There were n numbers of modules which we have been went through and how things go. I'll just talk about that. So firstly, the day I remembered, I have joined in Indigo on 16th of December 2021 and that day was induction day. Induction day basically आपका introduction होता है about the company. They introduce about the company, how the company works, what are the basic rule, and you are supposed to sign n numbers of questions. So be prepared for your first day that you are supposed to just sign from morning till late evening. We were signing all the documents, we were doing all the formalities and everything, submitting our documents, each and everything. The DD for the freshers, it is compulsory to to submit DD of 50,000 rupees in Indigo. So that DD was being collected on the very first day, that is induction day. Okay, so induction day was over. Now the actual journey begins from here. I remembered the very next day was iFly training in iFly. Okay, so here I would like to inform you that in one subject different chapters are being there, so same way in the whole training process there are different modules which you are supposed to clear. Okay, so our first module was grooming module. So we were very chill. We have been introduced the basic makeup of the company. The company asked for basic requirements, mentioned grooming, and it was 3-day module. So it was done. Now grooming तक तो बड़ा सब chill माहौल था and everyone was ठीक है हो जाएगा कर लेंगे. Now the actual picture begin. हमारा सेकेंड मॉड्यूल था बेसिक इन डॉग. एयरक्राफ्ट में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं यू आर सपोज टू लर्न दैट. ओह माय गॉड, इट वाज सो कंफ्यूजिंग एंड दिमाग प्रिपेयर ही नहीं था. हम सब प्रिपेयर ही नहीं थे. वी वर नॉट बीइंग टोल्ड कि आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा. तो एक मेंटालिटी होती है ना आपकी, तो वी वर नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड कि ये सब पढ़ना पड़ेगा. ऑफ कोर्स फॉर द एक्सपीरियंस पर्सन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट फॉर द फ्रेशर्स वी आर लाइक ए कैबिन क्रू में सिर्फ हमें 3 महीने की ट्रेनिंग में कस्टमर सर्विस, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर को कैसे सर्व करना है, यही होगा. बट ये सब भी होगा. वी वर नॉट बीन प्रिपेयर्ड मेंटली, बट ठीक है. मॉड्यूल स्टार्ट हुआ. 1 इक्विपमेंट, 2 इक्विपमेंट, 3 इक्विपमेंट. Oh my god, we were like stop, please stop over here, we are not understanding the things. But the equipments were n numbers. For example, fire extinguisher, then types of fire extinguisher. Indigo has oxygen, types of oxygen bottle which Indigo has, that we are supposed to learn. Then PBE kit, when we face fire, so we are supposed to wear PBE kit and where it is, how many types of PBE kit we have, how to operate them, what are the duration time of all the equipments, and everything was being told in our basic Indigo. All the equipments were being learned, and in that scenario only we got to know that we are supposed to give the exam after every module. और हर मॉड्यूल को क्लियर करने के लिए यू आर सपोज टू गेट मोर देन 90 मार्क्स, देन ओनली यू आर पासिंग, अदरवाइज यू आर नॉट गेटिंग पास. सो दिस वॉज अ टास्क फॉर ऑल ऑफ अस. सो बेसिक इन डॉग क्लियर हो गया हमारा. देन द नेक्स्ट मॉड्यूल वॉज कम्युनिकेशन. वी ऑल वर लाइक व्हाट आर वी इन द नर्सरी क्लासरूम, कम्युनिकेशन करवा रहे हैं हमें.
तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कम्युनिकेशन होता है. आई मस्ट टेल यू, आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा मिड रिव्यू हुआ था एंड आई हैव बीन आस्क्ड सम बेसिक क्वेश्चन एंड आई हैव आंसर्ड वेरी कि ठीक है उसमें क्या इंग्लिश ही तो बोलनी है. तो आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, बट आई मस्ट टेल यू इतने मिस्टेक्स निकले हैं उसमें एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है. देन आई गॉट लिटिल सीरियस कि ठीक है कोई भी चीज़ को हम लाइटली नहीं ले सकते हैं. वी आर सपोज टू गिव आर 100%, मोर देन 100% इन ऑल द मॉड्यूल्स. देन कम्युनिकेशन राउंड भी हमारा क्लियर हुआ. देन केम फर्स्ट एड. वो वॉट एन एक्सपीरियंस, आई कैन नॉट टेल यू. मुझे पहले से ही बहुत शौक था मेडिकल लाइन में, एंड टू बी अ सर्टिफाइड ट्रेनर इट्स अ गुड फीलिंग. बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ाई गई, CPR, AED, देन मेडिकल सिनारियोज को कैसे हैंडल करना है, हाउ टू ट्रीट देम, एवरीथिंग इज वाज बीन टोल्ड अस. वी हैव क्लियर्ड आवर फर्स्ट एड एग्ज़ाम एज वेल. यहाँ पर थोड़े से हम स्केर्ड हो गए थे अब तक के ठीक है नथिंग इज़ ईजी, बिकॉज फर्स्ट एड में बहुत पढ़ना था. ऑल द मेडिसिन नेम, देन द किट्स विच आर बीन प्रेजेंट इन द aircraft and in which kit what all things are present. After first aid was Airbus. Okay, so Airbus, it was like everything whole and soul about the aircraft. कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, किस तरह रखी गई है, किस चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है, एवरीथिंग, एवरी डिटेल, इवन अबाउट द कॉकपिट स्टफ we were being taught. So Airbus was in and out of the aircraft and we cleared this module as well. Now in this module in the Airbus, two of the girls, they couldn't clear the exam. कुछ technical glitch की वजह से they couldn't clear the exam, and at that moment we got to know if you are failing in more than 3 exams, you are getting relegated from the company. So again the things got more serious. After Airbus was emergency. I was not knowing कि मैं इतनी अच्छी हूँ चिल्लाने में. So in the emergency I got to know that I have a good voice and I can shout. So ये मॉड्यूल तो मेरा सबसे बेस्ट रहा. In my journey thing I have shown a small clip of my emergency command. बहुत सारे emergency command लर्न करने पड़ते हैं, और अगर emergency anticipated है, unanticipated, what we are supposed to do as a crew to save our passenger, we were being taught in this module. Okay, so we have cleared this exam as well. And now came the AFSEC. AFSEC के बारे में बड़ी हाइप कर दी गई थी iFly में कि AFSEC इज़ more tough. Basically जो theory exam होता है, it's just a MCQ thing. Okay, in all the module it was 50 question in 1 hour, but in AFSEC exam it was 100 question in 1 hour. So it was a task, और इतना हमने सुन रखा था हमारे सीनियर से, this module is literally a task for all of us. So start हुआ हमारा AFSEC. AFSEC basically है क्या? It's all about the security of the aircraft. Hey guys, actually the last video में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा लास्ट का क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, और मुझे वो वीडियो आज ही अपलोड करनी है. तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्लिप बना लेते हैं. तो हम लास्ट बात कर रहे थे AFSEC के बारे में. तो द लास्ट थिंग विच आई हैव डिस्कस्ड इज AFSEC एग्ज़ाम. AFSEC एग्ज़ाम जैसे ही हमारा क्लियर हुआ, उसी के बाद हमारा इंडिगो एग्ज़ाम हुआ. इंडिगो एग्ज़ाम में क्या होता है, बेसिकली आपने जो फर्स्ट डे से जो भी मॉड्यूल किए हो, जो भी पढ़ाई किए हो, उन सब का मतलब फाइनल एग्ज़ाम है. जैसे स्कूल में फाइनल एग्ज़ाम होता था, पूरे साल का पोर्शन आ जाता था, वैसे ही सेम इंडिगो एग्ज़ाम में सारे मॉड्यूल से क्वेश्चंस आते थे. तो यू आर सपोज टू प्रिपेयर फॉर दैट. और मुझे याद है जब मेरा इंडिगो एग्ज़ाम था तो आई डिडंट स्लेप फॉर 36 आवर्स.
मैं कंटिन्यूस जागी हुई थी बिकॉज एक डर था अंदर कि पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा। और ये एग्ज़ाम एयरक्राफ्ट में होता है, तो यू आर सपोज टू गो टू द एयरपोर्ट और फिर एक एयरक्राफ्ट में ले जाते हैं आपको, एंड देन दे आस्क यू रैंडम क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी इक्विपमेंट दिखा सकते हैं आपको, एंड देन दे विल टेल यू कि टॉक ऑन दिस, मीन्स विच इक्विपमेंट इज दिस एंड हाउ टू ऑपरेट एंड व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज दैट। ओके, सो इंडिगो एग्ज़ाम भी हमारा क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, एंड वी केम बैक टू द होम अराउंड 3 o'clock इन द मॉर्निंग। तो टफ तो था, एंड द वेरी नेक्स्ट डे वॉज द DGC एग्ज़ाम। अब इंडिगो ने तो कंडक्ट कर लिया ना, इंडिगो एग्ज़ाम में अबाउ 90 आना चाहिए, DGCA आप क्लियर करोगे तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। तो DGCA नेक्स्ट डे ही था, बट DGCA में एक चीज़ अच्छी है कि यू आर सपोज टू स्कोर 80 मार्क्स, तो थोड़ा सा लोड कम था, बट स्टिल DGCA एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए द पीपल कम फ्रॉम द DGCA, तो वो हमारी कंपनी के लोग नहीं होते, वो DGCA की तरफ से आते हैं, एंड दे पर्सनली कंडक्ट द एग्ज़ाम। तो वो एग्ज़ाम तो मेरा ऑसम गया है, मतलब मस्के की तरह। और फिर DGCA एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद हमारा था कस्टमर सर्विस। तो जो चीज़ मुझे लगी कि पूरे ट्रेनिंग में मैं यही सीखूंगी, वो ट्रेनिंग सबसे लास्ट में जस्ट फॉर 11 days इट वॉज कंडक्टेड। तो उस मॉड्यूल में आपको बताते हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव ऑन बोर्ड टू ईट, और कस्टमर से कैसे बिहेव करना है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, इफ़ द कस्टमर इज गेटिंग हाइपर फॉर एनी ऑफ द रीज़न एंड यू आर द एम्बेसडर ऑफ द कंपनी, सो थिंग्स विल कम अप ऑन यू। तो लोग आप पर चिल्लाएंगे, भले से किसी की भी गलती हो, तो हाउ यू आर सपोज टू हैंडल दैट सिचुएशन। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमको सिखाई गई। देन इंटरनेशनल सर्विसिंग, डोमेस्टिक सर्विसिंग, सारी चीज़ें उसमें सिखाई गई, एंड इट वॉज फन। देन 17th March ग्रेजुएशन डे। नाउ ग्रेजुएशन डे पर हमारी वाइस प्रेसिडेंट आती है, सुमन चोपड़ा, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन फ्लाइट सर्विसेज। तो यहाँ पर भी आके सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होती, बिकॉज यू आर सपोज टू इंटरेक्ट विथ हर, और इफ़ शी फील्स कि आप में वो कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर आपको और कॉन्फिडेंट लाने की ज़रूरत है, आपको और ट्रेन करने की ज़रूरत है, तो शी विल होल्ड बैक यू। तो ऐसा हुआ हमारे ग्रेजुएशन में, वन गर्ल वॉज हेल्ड बैक फॉर 15 more days। तो टिल द लास्ट डे आप बोल ही नहीं सकते कि यू आर गेटिंग क्लियर एज अ ट्रेनी, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ के वजह से कभी भी आपको होल्ड किया जा सकता है, बट स्टिल मैं यही बोलूँगी कि इफ़ यू आर विलिंग टू डू दिस जॉब, तो ऑब्वियसली यू विल गिव योर 100%, एंड इफ़ यू आर गिविंग योर 100%, नो डाउट कि आपको कोई होल्ड कर सके। तो इट वॉज फन फॉर मी, एंड when I came out of iFly after 3 months, जो मुझे सबसे पहले दिन बात बोली गई थी कि you will go out of the iFly as a strong woman, और ये बात सच हुई। We came out as a different personality, हमारे में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी थी 3 महीने के बाद, though we didn't got the time to interact with ourselves only, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे वे में हो गई। And yes, this was my journey. Hope you like the video. If you like it, please do like, share, subscribe to my YouTube channel Glimming Us. See you in my next video. Bye bye.